Hello students, welcome to the class of English Literature. Today we are going to discuss a short story, The Child. The story is written by Munshi Premchand, a famous Indian writer. This story is included in the syllabus of BA Part 3rd, Paper 2nd. Munshi Premchand was born on 31st July 1880 and he died on 8th October 1936. He was born as Dhanpat Rai Shrivastava, but better known by his pen name, Munshi Premchand was an Indian writer famous for his modern Hindi-Urdu literature. He was born in a small village near Varanasi, one of the most celebrated writers of the Indian subcontinent. He is regarded as one of the foremost Hindi writers of the early 20th century. He began writing under the pen name Nawab Rai, but subsequently he switched to other pen name, that is Premchand. Munshi, being an honorary prefix, is used before the name Premchand. Munshi Premchand was deeply influenced by Mahatma Gandhi, Tolstoy, Gorky, Victor Hugo, and Romain Rolland. In response to Mahatma Gandhi's appeal to people in 1920 to resign from their government jobs as a part of the non-cooperation movement, Premchand also resigned from his job. A novelist, story writer, and a dramatist, he has been referred to as the Upanyas Samrat by Hindi writers. Upanyas Samrat means emperor among novelists. His works include more than a dozen novels, around 250 short stories, several essays, and translations of a number of foreign literary works in Hindi language. His outstanding novels include Godan, Karambhumi, Prema, Nirmala, Rangbhumi, Gaban, Mansarovar, and Vardhan. His writings prominently features realism. His novels describe the problems of the poor and the urban middle class. He used literature for the purpose of arousing public awareness about national and social issues and often wrote about burning issues of corruption, child widowhood, prostitution, poverty, colonialism, and India's freedom movement. He published his first collection of 5 short stories in 1907 in a book that is called Sauze Watan. Now there is an introduction about the story which we are going to read. The Child is a beautiful story written by the famous writer Premchand. He brought a new sense of social awareness in people through his novels and short stories. The present story has didactic significance as it challenges society's narrow-minded middle class morality. The Child is a story which is narrated by the author, who is a generous rich man. So there are main 3 characters in the story. First one is narrator, second is Gangu, and third one is Gomti Devi. Gangu is one of narrator's servants. Gangu is a Brahmin and he is different from many other servants in the household. He is away from all the vices. Of course, he shows no characteristics of an ideal Brahmin. Once he goes to the narrator in private, the narrator thinks that he must have come to either ask for money or to complain about another servant. But the narrator is surprised when Gangu declared that he wants to leave the job. Next character is Gomti Devi. Gomti Devi has been driven away twice by her 2 past husbands. All believe her to be low in character, but Gangu's opinion is different. The narrator tries to stop Gangu, but Gangu says that nobody understands her. Finally, he leaves the job and marries Gomti Devi. So, by reading the story, we will understand why Gangu wants to marry Gomti Devi and why
she has left him after their marriage. And what is the message that the story conveys? In this story, Gangu surprises everybody by his bold act and set an example of true and unconditional love before society. So the story presents a moral lesson, and we will understand all these things by reading the text of the story in our next video. The story begins as: people call Gangu a Brahmin, and Gangu behaves like one. My groom and other servants salam me from a distance. Gangu never does that. In the beginning of the story, we have understood that the story is written in first person narrative. It means the person who is telling the story is present in the story. ये कहानी जो है वो फर्स्ट पर्सन नरेटिव में लिखी हुई है, और फर्स्ट पर्सन नरेटिव में जो मेन कैरेक्टर है या जो नरेटर है, जो कहानी बता रहा है, वो एक तरह से उस स्टोरी के अंदर प्रेजेंट होता है. तो यहाँ इस स्टोरी में एक कैरेक्टर के रूप में नरेटर प्रेजेंट है, एंड नरेटर टेल्स अस अबाउट गंगू. ही सेज दैट पीपल कॉल गंगू ए ब्राह्मण, कि लोग गंगू को एक ब्राह्मण बुलाते हैं, एंड गंगू बिहेव्स लाइक वन, और गंगू भी एक ब्राह्मण की तरह ही बिहेव करता है. माई ग्रूम एंड अदर सर्वेंट सलाम मी फ्रॉम ए डिस्टेंस. नरेटर ग्रूम मीन्स हॉर्स कीपर, एंड अदर सर्वेंट्स, नरेटर के जो सर्वेंट्स हैं वो दूर से ही उन्हें सलाम करते हैं. गंगू नेवर डज दैट, बट गंगू नेवर डज दैट. परहैप्स ही एक्सपेक्ट्स मी टू टच हिज फीट. शायद नरेटर को ये लग रहा है कि गंगू ये उम्मीद करता है कि नरेटर उसके पैर छुए. द रीज़न बिहाइंड दिस दैट गंगू इज नेवर रेडी टू सलाम द नरेटर is that Gangu thinks himself superior, being a Brahmin. He never handles the tumbler in which I have drunk, and I have never dared to ask him to fan me. और वो उस ग्लास को कभी नहीं छूता जिसमें मैंने पानी पिया हो, और मेरी कभी हिम्मत नहीं होती कि मैं उसे कहूँ कि वो मेरे लिए पंखा हिलाए. Whenever I get drenched in sweat and no one is around, Gangu picks up the fan by himself, but it becomes clear from his looks that he is doing me a favor. But whenever it becomes necessary for Gangu to pick up the fan for narrator, but he makes it clear that he is not ready to do this work. जब कभी भी गंगू को ज़रूरी हो जाता है कि वो नरेटर को फ़ैन हिलाए नरेटर के लिए, तो ऐसी स्थिति में वो अपना लुक्स इस तरह का देता है जैसे कि वो नरेटर पर कोई एहसान कर रहा है. एंड आई डोंट नो वाई आई एट वंस स्नैच द फैन फ्रॉम हिज हैंड्स. और मुझे नहीं पता कि क्यों एकदम से मैं उसके हाथ से फ़ैन छीन लेता हूँ. ही शॉर्ट टेम्पर्ड, कांट स्टैंड एनी क्रिटिसिज्म. उसको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है और वो क्रिटिसिज्म सहन नहीं कर पाता. ही हार्डली हैज़ एनी फ्रेंड्स. उसके बहुत कम दोस्त हैं. परहैप्स ही थिंक्स इट बिलो हिज डिग्निटी टू सिट बिसाइड माई ग्रूम एंड सर्वेंट्स. और शायद इसके कारण यह है कि वो अपनी डिग्निटी से इस चीज़ को बिलो मानता है कि अगर मेरे सर्वेंट या ग्रूम के पास अगर वो बैठ जाता है तो उसे लगता है कि उससे उसका सम्मान, उसकी प्रतिष्ठा जो है वो कम हो जाएगी. मीन्स गंगू इज थिंकिंग अबाउट हिमसेल्फ दैट ही इज़ सुपीरियर टू अदर सर्वेंट्स. I have never seen him socializing with anyone. नरेटर ने उसको किसी के भी साथ सोशलाइज होते हुए नहीं देखा. What surprises me most is that he is not addicted to bhang or things like that, a habit that is a special characteristic of the people of his caste. But there is a positive point in Gangu's character that he is not addicted to any narcotic thing. He is not taking भांग और ओपियम और हेम्प. इस तरह की चीज़ों से वो दूर है, जो कि अक्सर इस तरह का एडिक्शन इस कास्ट के लोगों में पाया जाता है. I have never seen him performing any religious rituals or bathing in a river. लेकिन नरेटर ने गंगू को कभी भी कोई धार्मिक रिचुअल करते हुए, कोई मंत्रोच्चार करते हुए नहीं देखा, और ना ही उसको कभी नदी में स्नान करते हुए देखा है. ही इज़ टोटली इलिटरेट. वो पूरी तरह से अनपढ़ है. इवन देन ही इज़ ए ब्राह्मण. उसके बाद भी वो ब्राह्मण है.
एंड एक्सपेक्ट अदर्स टू रेवरेंस एंड सर्व हिम, और वो उम्मीद करता है कि दूसरे उसकी रिस्पेक्ट करें, उसकी सेवा करें. बट वाई शुडंट ही, लेकिन वो इस तरह की उम्मीद क्यों ना करे. When people are holding on to the wealth inherited from their ancestors under the belief that they themselves have created that wealth, then why should he give up the respect and honor gathered by his forefathers? These lines are very appealing in the story, and they are real also, कि जब दूसरे लोग जब अपने पूर्वजों से जो उन्हें धन मिलता है, जो वेल्थ मिलती है, उसको इनहेरिट करने के बाद इस तरह का विश्वास रखते हैं जैसे कि वो पैसा उन्होंने खुद ने कमाया है. हालांकि वो उनके पूर्वजों का पैसा है, बट उसको इनहेरिट करने के बाद लोग ये मानते हैं कि वो पैसा उनका खुद का अर्न किया हुआ है. तो गंगू को क्यों नहीं अधिकार है कि वो सम्मान और ऑनर जो उसके पूर्वजों ने इकट्ठा किया है उसको वो भी इंजॉय करे. आफ्टर ऑल दिस इज़ हिज ओनली इनहेरिटेंस, ये उसका अधिकार है, उसका बर्थ राइट है. By nature, I am reserved with my servants. In the first paragraph, we have seen that what kind of character Gangu is. That Gangu is a Brahmin and he is illiterate. Even then, he thinks himself as a superior person to other servants. By nature, I am reserved with my servants. और नरेटर का नेचर ऐसा है कि वो अपने सर्वेंट्स से ज़्यादा बातचीत नहीं करते हैं. आई डोंट लाइक देम टू कम टू मी अनलेस आई आस्क फॉर देम, और नरेटर को नहीं पसंद कि उनके पास कोई सर्वेंट आए जब तक कि वो उन्हें ना बुलाए. डोंट लाइक टू शाउट फॉर देम फॉर स्मॉल मैटर्स, और नरेटर को छोटे छोटे काम के लिए अपने सर्वेंट्स पर चिल्लाने की आदत नहीं है. आई फाइंड इट मोर कन्वीनियंट टू पोर वाटर फ्रॉम सुराही विद माई ओन हैंड्स, or light the lamp, or put on my shoes, or to take out a book from the shelf, all by myself, than ask Hingan or Maiku to do any of that. These are the name of servants, Hingan and Maiku. तो नरेटर ने यहाँ बताया कि अपने छोटे छोटे काम जैसे पानी लेना, लाइट जलाना, अपने शूज़ पहनना या अपनी शेल्फ से किताबें लेना, ये सारे काम मैं खुद करना पसंद करता हूँ. दिस गिव्स मी ए फीलिंग ऑफ सेल्फ रिलायंस एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस. इससे मुझे एक आत्मनिर्भरता की भावना आती है. माई सर्वेंट्स टू हैव अंडरस्टूड माई नेचर एंड सेल्डम कम टू मी अनलेस आई कॉल देम. और मेरे सर्वेंट्स जो है उनको मेरा नेचर पता है और वो मेरे पास जब तक नहीं आते जब तक कि मैं उन्हें ना बुलाऊं. देयरफॉर वन मॉर्निंग व्हेन गंगू केम एंड स्टूड इन फ्रंट ऑफ मी आई डिडंट लाइक इट. और इसीलिए जब एक सुबह मैंने देखा कि गंगू आया और मेरे सामने खड़ा था तो मुझे ये बात पसंद नहीं आई. सो नरेटर इज़ नॉट हैप्पी व्हेन ही लुक्स गंगू इन फ्रंट ऑफ हिम इन द मॉर्निंग. These people come to me either to ask for an advance or to complain about one of their companions. These people here refers to servants. According to narrator, these servants come to him either to ask for an advance, या तो एडवांस में पैसा मांगने के लिए आते हैं, या फिर दूसरा रीज़न ये हो सकता है that they want to complain about other servant. And I dislike this. And narrator does not like this. I pay everyone on the first of the month, and whenever someone comes to ask for an advance, I get worked up. I don't like keeping account of small amounts. And then, if someone has got his full wages for a month, he has no right to spend it away in 15 days and then come and ask for an advance or a loan. And I hate listening to complaints. So there are two reasons for narrator that he does not like to coming his servants to him. The first reason that if a servant comes to ask for an advance, it is not suitable to narrator because he does not want to keep account of small amounts like these advances. And he says, when I have given the full salary for a month, so a servant should not spend the whole money in 15 days. And second reason of his not liking the servants coming to him is that they can come for complain about other servants. And he says, I hate listening to complaints. I look upon them
एज अ साइन ऑफ वीकनेस और ए मीन अटेम्प्ट एट फ्लैटरी। और ऐसा करना नरेटर को लगता है कि या तो ये उनकी कमजोरी है कि एक सर्वेंट दूसरे सर्वेंट की शिकायत करने आ रहा है, और इसका दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि दे वॉन्ट टू फ्लैटर नरेटर एंड नरेटर डज नॉट लाइक दिस। आई नीटेड माई ब्रोज एंड सेड, व्हाट्स द मैटर, आई डिडंट कॉल यू। सो व्हेन गंगू केम टू नरेटर, गंगू सेज नरेटर सेज दैट आई नीटेड माई ब्रोज एंड सेड, मुझे गुस्सा आया और मैंने कहा क्या बात है, आई डिडंट कॉल यू, मैंने तुम्हें नहीं बुलाया। आई वॉज अमेज टू सी ए लुक ऑफ पोलाइटनेस, supplication, and even unease on his proud face. It seemed he wanted to say something but was unable to find words for it. और मैं हैरान था ये देख के कि वो चेहरा जो हमेशा गर्व से भरा रहता था, उस चेहरे पर आज एक विनम्रता थी, सप्लिकेशन, प्लीडेडनेस थी, जैसे वो कोई रिक्वेस्ट करना चाहता है। इवन अनईज ऑन हिज प्राउड फेस एंड इट सीम्ड, और ऐसा लग रहा था दैट ही इज़ नॉट हैविंग वर्ड्स फॉर द थिंग दैट ही वॉन्ट्स टू टेल मी, और जो चीज़ वो मुझे बताना चाहता है उसके लिए उसके पास शब्द नहीं है। इन इरिटेशन आई सेड, व्हाट्स रॉन्ग, वाई डोंट यू से समथिंग, यू नो इट्स टाइम फॉर मी टू गो फॉर ए वॉक, आई एम गेटिंग लेट। तो इरिटेशन में नरेटर ने कहा कि क्या बात है और मैं लेट हो रहा हूँ, मुझे वॉक के लिए जाना है। गंगू रिप्लाइड इन ए डिजेक्टेड टोन, निराशा के भाव में गंगू ने उत्तर दिया, ऑल राइट, यू गो फॉर योर वॉक, आई विल कम अगेन। दिस वॉज स्टिल मोर वरीसम, ये तो और भी चिंता की बात होगी। वट इज़ दैट इफ़ गंगू कम्स आफ्टरवर्ड, गंगू सेज दैट आई विल कम अगेन, दोबारा आऊँगा। तो नरेटर को लगा कि ये तो और भी ज़्यादा वरीसम है। नाउ नोइंग दैट आई डोंट हैव मच टाइम, ही वुड क्विकली ब्लर्ट आउट ऑल इन वन आउटबर्स्ट। अब इसे पता है गंगू को कि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तो वो जल्दी से अपनी बात कह देगा। ऑन अनदर ओकेजन द रॉक वुड गो ऑन बिमोनिंग फॉर आवर्स, और अगर किसी दूसरे अवसर पर यह आता है तो ये घंटों तक अपनी बात कहता रहेगा। ही मे बी रिगार्डिंग माई रीडिंग एंड राइटिंग एज सम काइंड ऑफ वर्क, बट माई मोमेंट्स ऑफ कॉन्टम्पलेशन, द मोस्ट क्रूशियल वंस ऑफ माई वोकेशन, आर mere relaxation in his eyes। गंगू को मेरा रीडिंग करना या राइटिंग करना तो एक तरह का काम लगता है, बट द मोमेंट्स ऑफ कंटम्पलेशन, कंटम्पलेशन मीन्स टाइम ऑफ थिंकिंग, उस क्षण में जब मैं सोच रहा हूँगा, उस समय को, जो कि मेरे वोकेशन का राइटर है, नरेटर एक, और एक लेखक के लिए थिंकिंग प्रोसेस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये इसके वोकेशन का एक क्रूशियल पॉइंट होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है, व्हेन ही कंटेम्पलेट्स अबाउट हिज राइटिंग, व्हेन ही थिंक्स एंड देन ही राइट्स। सो उस टाइम को गंगू क्या समझेगा, रिलैक्सेशन समझेगा। उसके सामने वो टाइम जो है एक तरह से नरेटर का फ्री टाइम होगा, एंड ही वुड कैच होल्ड ऑफ मी एट सच ए टाइम, और ऐसे टाइम पर आकर ये मेरे पास अपनी बात कहने लग जाएगा। सो नरेटर वॉन्ट्स to listen what Gangu wants to say at the present moment. He says, have you come to ask for an advance? I don't give advances, I said rudely. The narrator ने कहा कि क्या तुम एडवांस के लिए आए हो? मैं एडवांस नहीं देता। No सरकार, I have never asked for an advance. Then have you come to complain against someone? I don't like to listen to complaints. Then Gangu answers, नो सरकार, आई हैव नेवर कंप्लेंड अगेंस्ट एनीवन। तो गंगू जो है दोनों ही रीज़न से नहीं आया है, ना तो उसे एडवांस चाहिए और ना ही वो किसी दूसरे सर्वेंट की शिकायत करने आया है। गंगू नाउ लुक डिटरमाइंड। फ्रॉम द एक्सप्रेशन ऑन हिज फेस इट सीम्ड ही वॉज मार्शलिंग ऑल हिज स्ट्रेंथ फॉर ए लॉन्ग हॉल। और उसके एक्सप्रेशन जो चेहरे पर आ रहे थे उससे पता चल रहा था दैट ही इज़ गैदरिंग हिज स्ट्रेंथ टू टेल, and he spoke in an unsteady voice, please relieve me of my duties। और एक अनस्टेडी वॉइस में उसने कहा कि मुझे मेरे कर्तव्य से मुक्त कीजिए। now I won't be able to serve under you, अब मैं आपकी सेवा नहीं कर सकता। मीन्स he wants to resign the job, वो उस जॉब को छोड़ना चाहता है। I had never before heard this kind of demand, it hurt my self pride। and narrator says that I had never before heard this kind of demand,
आज से पहले लेखक ने अपने सर्वेंट से इस तरह की डिमांड नहीं सुनी थी। एंड इट हर्ट माई सेल्फ प्राइड एंड अकॉर्डिंग टू नरेटर इट हर्ट हिज सेल्फ प्राइड। उनके आत्मसम्मान को इससे धक्का लगा। आई कंसिडर माई सेल्फ ए मॉडल ऑफ ह्यूमेन बिहेवियर। नरेटर को लगता है कि उनका व्यवहार जो है मानवीय है। आई डोंट स्पीक हार्शली टू माई सर्वेंट्स एंड ट्राई टू कीप माई बोसी एटीट्यूड शीट्ड। और मैं अपने सर्वेंट्स के साथ हार्श टोन में बात नहीं करता, कभी भी अपना बोस वाला एटीट्यूड उनको नहीं दिखाता। सो आई वॉज अमेज्ड एट दिस प्ली। तो ये रिक्वेस्ट जब सामने आई तो मैं बहुत हैरान था। आई सेड इन ए हार्श टोन, वाई व्हाट्स योर रिसेंटमेंट। तुम्हें क्या दिक्कत है, किस वजह से तुम नाराज़ हो। वेरी फ्यू आर एज गुड नेचर्ड एज यू हजूर, बट आई एम इन ए सिचुएशन इन विच आई कैन नो लॉन्गर वर्क विथ यू। बहुत कम लोग इतने अच्छे होते हैं जितने कि आप अच्छे हैं। ये बात गंगू कह रहा है नरेटर से, लेकिन मैं एक ऐसी सिचुएशन में हूँ जिसमें कि मैं आपके साथ ज़्यादा समय तक काम नहीं कर सकता। वाइल आई एम हियर समथिंग माइट हैपन टू ब्रिंग ए बैड नेम टू यू। अगर मैं यहाँ रहूँगा तो उससे आपकी बदनामी होगी। आई डोंट वॉन्ट दैट योर रेपुटेशन शुड सफ़र बिकॉज ऑफ मी। और मैं नहीं चाहता कि आपकी रेपुटेशन मेरी वजह से खराब हो। I was perplexed and became inflamed with curiosity. और मुझे बहुत ज़्यादा जिज्ञासा हुई, नरेटर को बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी हुई टू नो व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ दिस, कि ये ऐसी बात क्यों कह रहा है गंगू। आई थ्रू माई सेल्फ इन टू द चेयर लेइंग इन द वरांदा एंड सेड। और नरेटर ने वहाँ जो चेयर पड़ी थी वरांदा में उस पर बैठे और कहा, वाई डू यू टॉक इन रिडल्स। तुम पहेलियों में बात क्यों कर रहे हो। टेल मी स्ट्रेट what the matter is। मुझे साफ साफ बताओ क्या बात है। And narrator is very surprised to listen this because he is very well behaved with his servants. So when narrator asks from Gangu that why he wants to leave his job, very politely Gangu said, the truth is that the woman who has been expelled from the widow's ashram, the same Gomti Devi, and he is not able to complete the sentence। यहाँ गंगू जो है वो अपनी बात पूरी नहीं करता है और वो कहना शुरू करता है कि वो वुमन जिसे कि विडो आश्रम से निकाल दिया गया है, गोमती देवी। सो हेयर वी कैन से देयर इज एंटेंस ऑफ थर्ड कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी, दैट इज गोमती देवी। आई आस्क इम्पेशेंटली। नरेटर जो है उन्होंने इम्पेशेंटली पूछा, यस शी हैज़ बिन एक्सपेल्ड, सो व्हाट हैज़ दैट टू डू विद योर जॉब। हाँ, उसे निकाल दिया गया है, लेकिन उसका तुम्हारी जॉब से क्या लेना देना। इट वॉज एज इफ गंगू हैड अनलोडेड ए हैवी बर्डन फ्रॉम हिज हेड। ऐसे लगा कि गंगू ने अपने सिर से एक बहुत बड़ा बोझ उतार दिया हो। बाय सेइंग आई वॉन्ट टू मैरी हर बाबूजी। गंगू कहता है कि मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। आई लुक्ड एट हिम विद एस्टोनिशमेंट। नरेटर लुक्स एट गंगू विद सरप्राइज। नरेटर हैरानी के साथ गंगू की तरफ देखते हैं। दिस इलिटरेट एंड ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण untouched by new ideas is going to marry this shameless whore whom no one would even let into their house। ये ऑर्थोडॉक्स और इलिटरेट ब्राह्मण जिसे कि नए विचारों का पता भी नहीं है, वो इसके साथ शादी करना चाहता है, जिसे कि ऐसी औरत जिसे कोई अपने घर में घुसने की भी इजाज़त नहीं देता। गोमती हैड क्रिएटेड ए स्टिर इन द पीसफुल एटमॉस्फेयर ऑफ द मोहल्ला। उनके मोहल्ले में गोमती देवी ने शांतिपूर्ण वातावरण जो है उसको खराब करके रखा हुआ था। शी हैड कम टू दिस विडोज़ आश्रम ए फ्यू ईयर्स अगो। वो इस विडोज़ आश्रम में कुछ साल पहले आई। द ऑफिशियल्स ऑफ द आश्रम हैड मैरिड हर ऑफ 3 times एंड ईच टाइम शी हैड लेफ्ट हर हस्बैंड एंड रिटर्न आफ्टर ए फ्यू वीक्स और ए मंथ। आश्रम के जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने गोमती देवी की शादी 3 बार कर दी और हर बार वो अपने हस्बैंड को छोड़कर 1 हफ्ते बाद या कुछ हफ्ते बाद और या फिर 1 महीने के बाद वापस आ जाती थी। सो मच सो दैट द सेक्रेटरी ऑफ द आश्रम हैड दिस टाइम एक्सपेल्ड हर। और इसीलिए आश्रम के सेक्रेटरी ने इस बार इसे आश्रम से निकाल दिया। एंड नाउ शी लिव्ड इन ए स्मॉल रूम इन द मोहल्ला एंड हैड बिकम ए सोर्स ऑफ फन फॉर द मोहल्लाज बैड कैरेक्टर्स। और इसलिए वो मोहल्ले के एक छोटे से रूम में रह रही है और वहाँ मोहल्ले के
जो बुरे कैरेक्टर के लोग हैं उनके लिए एक फन का सोर्स बनी हुई है। I was angered at Gangu's simplicity, but I also pitied him. Narrator says that he was angry when he heard about it. लेकिन गंगू पर उसे दया भी आ रही थी। The donkey could not find any other woman except this one to marry. क्या इसे कोई औरत नहीं मिली शादी करने के लिए? When she had forsaken 3 men, how long would she stay with him? जब उसने पहले ही 3 आदमियों को छोड़ दिया है तो वो इसके साथ कितने समय तक रुकेगी? Had he been a man of money, she might have stayed with him for 6 months or a year. अगर ये पैसे वाला व्यक्ति होता तो शायद वो इसके साथ 6 महीने या 1 साल रुक जाती। He is stark blind. She won't stay with him even for a week. इसके साथ तो वो 1 हफ्ते भी नहीं रुकेगी। I asked him in a tone of clear warning. Here narrator asks by giving a warning to Gangu that don't you know the stories of her misdeeds, कि क्या गोमती देवी के मिसडीड की कहानियाँ तुम्हें नहीं पता? गंगू spoke as if he had been an eyewitness. गंगू ऐसे उत्तर देता है जैसे कि उसने सब कुछ आंखों से देखा है। These are all lies. ये सब झूठ है। People have maligned her for nothing. लोगों ने उसे बिना बात के बदनाम कर रखा है। What do you mean? Hasn't she left 3 men? क्या मतलब तुम्हारा? क्या उसने 3 आदमियों को नहीं छोड़ा? They drove her out. What could she do? उन लोगों ने उसे निकाल दिया तो वो क्या करती? You fool! Does anyone come from so far? Spend thousands of rupees just to drive away women? The narrator says to Gangu, as a foolish person, you fool! Does anyone कि जिन लोगों ने उससे मैरिज की पहले वो इतनी दूर आए, उन्होंने हज़ारों रुपए खर्च किए, तो क्या इसके लिए कि वो उस औरत को निकाल दें घर से? Gangu, charged with emotion, replied, Hazur, no woman can stay where there is no love. अब इमोशनली गंगू आंसर देता है इस बात का, रिप्लाई करता है कि एक औरत वहाँ नहीं रुक सकती जहाँ लव नहीं है। A woman doesn't need just food and clothing. She needs love too. They must have thought they had done a widow a great favor by marrying her. और उन लोगों ने ऐसा सोचा जिन्होंने गोमती देवी से शादी की थी कि उन्होंने एक विडो के ऊपर एहसान किया है उसे मैरिज करके। They must have expected her to surrender to them body and soul. But to do that, one has first to surrender oneself, Hazur. That's it. Moreover, she is suffering from a sickness. She is sometimes possessed by spirit. Then she starts talking nonsense and falls unconscious. Here Gangu gives another reason. First he says that a woman needs love too. And secondly he says that she is possessed by a spirit. कि उसके ऊपर किसी भूत का असर है, किसी आत्मा का असर है और इसीलिए वो कभी कभी नॉनसेंस बात करती है और बेहोश हो जाती है। एंड यू विल मैरी सच ए वुमन, और तुम एक ऐसी औरत से शादी करोगे? नरेटर आस्क। आई आस्क्ड, शेकिंग माई हेड इन डिसबिलीव, और अविश्वास के साथ नरेटर ने अपना सिर हिलाया। टेक इट फ्रॉम मी, यू विल रीप ए बिटर हार्वेस्ट, तुम एक कड़वी फसल जो है उसे काट रहे हो। गंगू शूक हिज हेड लाइक ए मार्टियर एंड सेड, गंगू ने अपना सिर हिलाया एक शहीद की तरह और कहा, बाबूजी, आई बिलीव इट विल एंड हैप्पीली फॉर मी, गॉड विलिंग, मैं विश्वास करता हूँ कि मेरे लिए सब अच्छा होगा। देन यू हैव डिसाइडेड फाइनली, आई आस्क्ड फर्मली, नरेटर ने पूरी दृढ़ता के साथ पूछा कि इसका मतलब तुमने डिसाइड कर लिया है? यस हजूर, एंड गंगू आंसर्स, यस हजूर। देन आई एक्सेप्ट योर रेजिग्नेशन, तो मैं तुम्हारा इस्तीफ़ा स्वीकार करता हूँ। I am not a prisoner of worn out customs and orthodoxies, but to keep in my employment a man who was marrying a slut was really a risky proposition. Here narrator says that he is not a prisoner of worn out customs and orthodoxies, but he doesn't want to keep a person in his service who is taking such kind of risk. Every now and then there would arise new complications and troubles. क्योंकि इस तरह का स्टेप लेने के बाद गंगू के साथ हर समय नए कॉम्प्लिकेशंस आएंगे, नई परेशानियां आएंगी।
द पुलिस वुड कम एंड कोर्ट केसेस, पुलिस भी आ सकती है, कोर्ट केसेस भी हो सकते हैं. देयर माइट इवन बी थेफ्ट्स. सो इट वॉज एडवाइजेबल टू कीप ऑफ दीज क्विकसेंड्स. तो यही सही रहेगा कि इन चीज़ों को दूर रखा जाए. गंगू, लाइक ए मैन हंग्री फ्रॉम deprivation, is leaping for piece of bread, unmindful that it is a leftover, is dry and unfit to eat. Here narrator is saying that Gangu is like a hungry person. Gangu is compared with a man who is very hungry and he is leaping for a piece of bread and not thinking that that piece of bread is left over, that is dry and that is not uh, fit to eat. I thought it right to keep him out. तो नरेटर को लगा कि ये बेटर है कि उसे जाने दिया जाए. 5 months went by. 5 महीने गुजर गए. Gangu had married Gomti and he lived in a tiled roof shack in the same मोहल्ला. गंगू ने शादी कर ली थी गोमती देवी से और वहीं उसी मोहल्ला में वो रह रहे थे. नाउ ही मेड हिज लिविंग बाय हॉकिंग चाट. अब वो एक चाट जो है वो बेचता था. वेन एवर आई मेट हिम इन द बाजार आई वुड इंक्वायर अबाउट हिज वेल बींग फॉर आई हैड बिकम डीपली इंटरेस्टेड इन हिम. और जब कभी भी वो नरेटर को बाजार में मिल जाता तो नरेटर उससे पूछते उसकी वेल बींग के बारे में. एंड नरेटर वॉज बिकमिंग डीपली इंटरेस्टेड इन हिम. और अब नरेटर का उसमें इंटरेस्ट बहुत बढ़ गया था. हिज लाइफ वॉज ए टेस्टिंग ग्राउंड फॉर ए सोशल क्वेश्चन, नॉट ओनली सोशल, ए साइकोलॉजिकल वन टू. उसकी जो लाइफ थी, उसका जो जीवन था, वो एक तरह से टेस्ट था, एक सामाजिक प्रश्न का भी और साथ ही साथ एक साइकोलॉजिकल क्वेश्चन भी वहाँ था. सोशल क्वेश्चन ऐसे कि गोमती देवी से उसने शादी की और उस तरह की वुमेन जिसकी कि सोसाइटी में कोई अच्छी रेपुटेशन नहीं है, उसके साथ वो कैसे सर्वाइव कर रहा है, कैसे रह रहा है. और सेकेंडली साइकोलॉजिकल इस वजह से टेस्टिंग थी कि गंगू जो है उसने इस तरह का डिसीज़न लिया तो उसमें कहीं ना कहीं उसकी साइकोलॉजिकल, उसकी मेंटलिटी जो है वो किस तरह से वर्क कर रही थी. एंड हाउ ही इज़ थिंकिंग आफ्टर मैरिंग गोमती देवी. I was curious to know how this would end, and narrator was very curious that how all these things will end. कि ये मैरिज तो हो गई है बट इसका आगे क्या कंक्लूजन निकलेगा, इसके बारे में नरेटर को बहुत ज़्यादा जिज्ञासा है. आई ऑलवेज फाउंड गंगू इन ए हैप्पी स्टेट ऑफ माइंड. वेन एवर नरेटर गोज टू मार्केट एंड ही मीट्स गंगू ही फाइंड्स हिम हैप्पी. तो वो हमेशा गंगू को एक हैप्पी स्टेट ऑफ माइंड में देखता है. आई कुड क्लियरली सी on his face the sparkle and self-confidence that is the result of happiness and contentment in life. और हमेशा वो देखता है कि उसके चेहरे पर एक चमक है, एक आत्मसम्मान है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है. और इस तरह का स्पार्कल और सेल्फ कॉन्फिडेंस वो एक हैप्पीनेस और कंटेंटमेंट, यानी जो पर्सन लाइफ में सेटिस्फाइड है, हैप्पी है, उसी के चेहरे पर ऐसी चमक हो सकती है. His sale was no more than ₹1.50. And out of this, his earnings came to about 8 to 10 आनास. उसकी सेल जो है वो ₹1.50 यानी ₹1.50 से ज़्यादा नहीं होगी और उस अर्निंग में से ही उसे 8 से 10 आना मिलते हैं, बचते हैं. This was his livelihood, but it seemed blessed by God because there was not a trace of the shame and misfortune that is found among such people. On his face there was a look of self-assurance and joy that comes only to contented soul. तो उसके चेहरे पर जो सेल्फ एश्योरेंस था, आत्मविश्वास था, वो केवल एक संतुष्ट आत्मा जो है उसके चेहरे पर ही दिखाई दे सकता है. टाइम passes and it seems that he is happy with Gomti Devi. But one day, narrator says that one day I heard that Gomti had deserted Gangu and run away. लेकिन एक दिन न्यूज़ आई कि गोमती देवी जो है उन्होंने गंगू को छोड़ दिया और भाग गई. I don't know why but I derived a strange pleasure from this news. And narrator was
feeling a strange type of happiness by listening this news. When he heard about this news, he was happy. I had become envious of Gangu's happy and contented life and was waiting for some unhappy, disastrous, or shameful end to it. Narrator was envious of Gangu's happy life. नरेटर गंगू की खुशी से भरी हुई संतुष्ट जो लाइफ थी उससे एनवी फील कर रहे थे, ईर्ष्यालु थे और वो वेट कर रहे थे कि कुछ अनहैप्पी घटित हो. एंड वाई ही वॉज एनवियस? Here we can understand he was envious because he predicted that Gomti Devi and Gangu will not remain happy after their marriage and Gomti Devi will leave him. But Gangu was happy, and when narrator heard the news that Gomti Devi had deserted Gangu, he was feeling a strange kind of pleasure by this news. This news gratified my envy. इस न्यूज़ ने मेरी एनवी को, मेरी ईर्ष्या को शांत किया. आफ्टर ऑल द वेरी थिंग आई हैड एक्सपेक्टेड हैड हैपन. आफ्टर ऑल जिस चीज़ की मैं उम्मीद कर रहा था वो घटित हो गई. द फेलो वॉज पनिश्ड फॉर हिज लैक ऑफ फोरसाइट. फेलो गंगू जो है उसको पनिश किया गया उसकी फोरसाइट की कमी की वजह से. उसमें दूरदृष्टि की कमी थी. लेट मी सी हाउ ही शोज़ हिज फेस टू मी. अब मैं देखता हूँ वो मुझे अपना चेहरा कैसे दिखाएगा. नाउ ही वुड रियलाइज हाउ राइट दे वर हु हैड एडवाइज्ड हिम अगेंस्ट दिस मैरिज. अब वो महसूस करेगा कि वो लोग सही थे जिन्होंने उसे इस मैरिज के अगेंस्ट एडवाइस दिया था. ही हैड थॉट दैट ही हैड कम टू पोजेस समथिंग रेयर एज इफ द डोर्स टू साल्वेशन हैड ओपन फॉर हिम. When people suggested Gangu that he should not marry Gomti Devi, he had thought at that time that he is going to have a rare thing. उस समय उसने ये सोचा था कि उसको कोई रेयर चीज़ जो है वो मिल रही है जिसके मिलते ही उसके मोक्ष के दरवाजे जो है वो खुल जाएंगे. People had warned him that women could not be trusted, that she had deceived so many, but it had all fallen on deaf ears. लोगों ने उसे बहुत समझाया, चेतावनी दी कि ये औरत विश्वास के लायक नहीं है, उसने बहुत से लोगों को धोखा दिया है. लेकिन ये सारी बातें जो है उसके कानों में ऐसे पड़ रही थी जैसे कि डेफ ईयर्स हो, चिकने घड़े के समान थी. नाउ व्हेन ही मीट्स मी आई शैल आस्क हिम हाउ हैप्पी ही वॉज आफ्टर दिस बून फ्रॉम हिज गॉडेस. अब वो जब मुझसे मिलेगा, नरेटर सीज दैट आई शैल आस्क हिम, कि मैं उससे पूछूंगा कि अब वो कितना खुश है. आफ्टर ऑल ये जो बून, ये वरदान जो उसकी गॉडेस उसे देके गई हैं गोमती देवी, इसके बाद अब वो कैसा फील कर रहा है. आई विल आस्क हिम ही यूज्ड टू से शी वॉज दिस एंड शी वॉज दैट एंड पीपल डिफेम्ड हर आउट ऑफ इल विल एंड नाउ लेट मी सी हु वॉज मिस्टेकन. वो कहा करता था उसके बारे में कि गोमती देवी ये है वो है, लोग जो है वो उसे बदनाम कर रहे हैं बुरी इच्छा से. अब मैं देखता हूँ कौन गलत था. द सेम डे आई हैपन टू मीट गंगू इन द मार्केट. और उसी दिन नरेटर जो है गंगू से मार्केट में मिलते हैं. ही वॉज शेकन एंड अनसेटल्ड, completely lost to himself. He was upset, completely upset. Tears welled up in his eyes the moment he saw me. जैसे ही उसने नरेटर को देखा गंगू ने, उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे. Not out of shame but pain. ये आंसू जो थे ये शर्मिंदगी के नहीं थे बल्कि दर्द के थे. बाबूजी, गोमती deceived me too, hiding my malicious pleasure under an outward show of sympathy, I said. Gangu says that Gomti Devi has deceived me too, कि गोमती देवी ने मुझे भी धोखा दे दिया. Narrator was feeling a strange kind of pleasure, but he says that hiding my malicious pleasure under an outward show of sympathy, बाहर से sympathy दिखाते हुए और मुझे जो एक प्लेजर मिल रहा था स्ट्रेंज टाइप का, उसे छुपाते हुए मैंने कहा आई हैड वॉर्न यू ऑफ दिस, मैंने तुम्हें इसके बारे में वॉर्न किया था एंड यू डिड नॉट लिसन. नाउ हैव पेशेंस, अब धैर्य रखो. देयर इज़ नथिंग एल्स यू कैन डू, इसके अलावा तुम कुछ नहीं कर सकते. हैज़ शी क्लीन्ड यू आउट और लेफ्ट समथिंग बिहाइंड, क्या वो सब कुछ ले गई या तुम्हारे लिए कुछ छोड़ गई है.
गंगू टच्ड हिज हार्ट विद हिज हैंड्स। गंगू ने अपने हाथों से अपने दिल को छुआ। इट सीम्ड माई स्पीच हैड हर्ट हिम डीपली। ऐसे लगा कि मेरी इस बात ने उसे बहुत ज़्यादा हर्ट किया है। ओ बाबूजी, डोंट से दिस। शी टुक अवे नथिंग। वो कुछ भी नहीं लेकर गई है। इनफैक्ट शी लेफ्ट बिहाइंड वट एवर शी हैड। वो तो जो कुछ उसके पास था वो भी छोड़ गई है। आई डोंट नो वट माई फॉल्ट वॉज। मुझे नहीं पता कि मुझसे क्या गलती हुई। मे बी आई वॉज नॉट गुड इनफ फॉर हर। शायद मैं उसके लिए सही नहीं था। शी वॉज लिटरेट एंड आई अनलेटर्ड। वो पढ़ी लिखी और मैं अनपढ़। इट वॉज इनफ दैट शी स्टेड विद मी फॉर सो लॉन्ग। ये बहुत है कि वो इतने लंबे समय तक मेरे साथ रुक गई। हैड शी स्टेड विद मी ए लिटिल लॉन्गर आई वुड हैव बिकम ए गुड पर्सन। अगर वो मेरे साथ थोड़ा और रुक जाती तो मैं एक अच्छा आदमी बन जाता। वट शुड आई टेल यू अबाउट हर। उसके बारे में मैं आपको क्या बताऊँ। आई डोंट नो वट शी वॉज फॉर अदर्स बट फॉर मी शी वॉज लाइक ए गॉड्स ब्लेसिंग। मुझे नहीं पता लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, लेकिन मेरे लिए वो भगवान का आशीर्वाद थी। आई डोंट नो वेयर आई हैड फॉल्टेड। मुझे नहीं पता मुझसे कहाँ गलती हुई। आई स्वेयर आई नेवर सॉ ए ट्रेस ऑफ रिसेंटमेंट ऑन हर फेस। मैं कसम खाता हूँ कि मैंने उसके चेहरे पर रिसेंटमेंट का कोई ट्रेस नहीं देखा। आई एम नो बॉडी बाबूजी। आई एम नथिंग। मैं कुछ भी नहीं हूँ। आई अर्न नो मोर देन 10-12 आनास। But she was so good at housekeeping that I never felt the shortage of anything. मैं एक दिन में 10 या 12 आने से ज़्यादा नहीं कमा पाता, लेकिन वो घर को संभालने में इतनी अच्छी थी कि मुझे कभी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं हुई। I was acutely disappointed at what he said. Narrator was expecting something else from Gangu, but Gangu is praising Gomti Devi. So narrator was acutely disappointed when Gangu describes all this. I had thought he would narrate the story of her infidelity and I would show my sympathy for him. Narrator कह रहे हैं कि मैंने सोचा था कि वो उसकी बेवफाई की कहानी सुनाएंगे और उसके प्रति, गंगू के प्रति मैं अपनी सिंपैथी शो करूँगा। बट हिज आइज़ वर नॉट येट ओपन। लेकिन इसकी आंखें तो अभी भी नहीं खुली थी। द फूल दैट ही वॉज। He was still under her spell and had become disorientated. अभी भी वो उसके जादू के अंदर था। I began to ridicule him. So she has not carried anything with her. मैंने उसका मजाक उड़ाना शुरू किया तो इसका मतलब वो अपने साथ कुछ नहीं लेगी। Nothing at all बाबूजी, not a pie. एक पैसा भी नहीं। And she loved you very much. How should I convince you बाबूजी that love I shall not forget till my death. कि वो मुझे इतना प्यार करती थी कि उस लव को मैं अपनी डेथ तक नहीं भूलूंगा। एंड इवन देन शी डेजर्टेड यू। द नरेटर आस्क कि क्या इसके बाद भी वो तुम्हें छोड़ गई। दैट्स व्हाट सरप्राइजेज मी बाबूजी। गंगू आंसर्स दैट इसी वजह से मैं हैरान हूँ। हैवंट यू हर्ड द स्टोरीज ऑफ फीमेल ट्रीचरी। क्या तुमने कहानियाँ नहीं सुनी हैं फीमेल ट्रीचरी की। डोंट से दैट बाबूजी। आई वुड कीप सिंगिंग हर प्रेजेस even if someone should threaten to slit my throat. ऐसा मत कहो बाबूजी। मैं उसकी प्रशंसा की कहानियाँ तब तक गाता रहूँगा चाहे कोई मेरा गला काटने की धमकी भी मुझे देगा तो भी मैं उसकी प्रेजेस जो है उसके बारे में बोलना बंद नहीं करूँगा। Then go and search for her. Yes master, I won't rest till I have found her. जब तक मैं उसे ढूंढ नहीं लेता मैं रुकूंगा नहीं। Once I come to know where she is, I shall definitely bring her back. एक बार मुझे पता चल जाए वो कहाँ है मैं निश्चित रूप से उसे वापस लेकर आऊँगा। And my heart tells me that she will come back. और मेरा दिल कहता है कि वो मेरे साथ वापस आएगी। You will see. She has not gone away out of any resentment. वो नाराज होकर नहीं गई है। I shall search for her everywhere. मैं हर जगह उसे ढूंढूंगा। And when I have found her, I will see you again. और जब वो मुझे मिल जाएगी तो मैं आपसे दोबारा मिलूँगा। Saying this he went his way, distraught with emotion. और इस तरह भावनाओं से भरा हुआ वो अपने रास्ते पर चल पड़ा। Just after this meeting, I had to go to Nainital for some work and returned after a month. और इस मीटिंग के बाद नरेटर जो है वो नैनीताल चले जाते हैं कुछ काम से और 1 महीने के बाद लौटते हैं।
I had not yet changed my dress when I saw Gangu standing in front of me, holding a newly born baby in his hands. नरेटर ने अभी अपना ड्रेस भी चेंज नहीं किया था। क्या देखते हैं कि गंगू उनके सामने खड़ा है और उसके हाथों में एक छोटा बच्चा है। Perhaps even Nand himself would not have been so overjoyed to hold the child Krishna in his lap. शायद नंद बाबा भी जब श्री कृष्ण को उन्होंने बच्चे के रूप में अपनी गोदी में ले रखा था तो इतना ज़्यादा खुश नहीं थे जितना गंगू दिख रहा है। गंगूज होल बॉडी सीम टू एक्सूड एन अनकंट्रोलेबल जॉय। गंगू की पूरी बॉडी शो कर रही थी दैट ही इज़ वेरी हैप्पी, कि वो अपने आनंद को, अपने जॉय को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। हिज फेस एंड आइज वर सिंगिंग विद ग्रेटिट्यूड एंड लव। उसकी आंखों और चेहरे पर एक आभार और प्यार का भाव था। He displayed the same kind of contentment that one finds on the face of starving beggar after he had had his fill. और उसके चेहरे पर वही संतुष्टि थी जो एक भिखारी के चेहरे पर तब आती है जब उसे पूरी संतुष्टि के साथ खाना मिल जाता है। यानी एक स्टार्विंग बेगर को जब फुल फूड मिल जाता है तो उसके चेहरे पर जो कंटेंटमेंट होता है, बिल्कुल सेम ऐसा ही कंटेंटमेंट गंगू के चेहरे पर था। सो नाउ वी हैव सीन that Gomti Devi leaves Gangu and he tells all these things to narrator. Narrator goes to Nainital, and when he comes back from Nainital after 1 month, he finds that Gangu is having a baby. Narrator's home. He leaves his job because he wants to marry Gomti Devi. He marries her, and after their marriage, Gomti Devi leaves Gangu. And narrator is feeling a strange kind of pleasure by hearing this news that Gomti Devi had left Gangu. And the reason behind this thing, that narrator gave warning to Gangu before their marriage that he should not marry this kind of lady. Narrator goes to Nainital, and when he comes back after 1 month, what he finds that Gangu is standing in front of him and he is having a small baby in his hand. Narrator asks from Gangu, he said, "Tell me, great man, did you get some news of Gomti Devi? You had gone away to trace her." कि मुझे बताओ कि क्या तुम्हें गोमती देवी की कोई न्यूज़ मिली? तुम उसे ढूंढने वाली थे। Gangu burst out, "Yes, Babuji, with your blessings, I have brought her back. She was found in a hospital in Lucknow. She had confided her whereabouts to one of her female friends here. The moment I came to know, I rushed to Lucknow and dragged her back. And I got this baby over and above." Then Gangu tells that with your blessings, कि आपके आशीर्वाद से मैं उसे वापस ले आया हूँ। वो लखनऊ के किसी हॉस्पिटल में थी और जैसे ही मुझे पता चला तो मैं लखनऊ गया और उसे वापस ले आया और साथ ही मुझे ये बच्चा भी मिला। He lifted the baby and brought it in full view of me, like a sportsman proudly displaying his medal. उसने बच्चे को उठाया और मेरे सामने उस बच्चे को ऐसे दिखाया जैसे कि कोई स्पोर्ट्स पर्सन जो है प्राउड के साथ अपने मेडल को डिस्प्ले करता है। I remarked mockingly, "Very fine. You got this boy too. Perhaps that is why she had run away. Is he your son? शायद वो इसी वजह से भागी थी। क्या वह तुम्हारा बेटा है? Why mine, बाबूजी? He is yours, God's. ये आपका बच्चा है, भगवान का बच्चा है। Was he born in Lucknow? Yes, बाबूजी. He is just a month old. ये 1 महीने का है। How long have you been married? This is the 7th month. So he was born in the 6th month of your marriage. इसका मतलब आपकी शादी के 6 महीने के बाद इसका जन्म हुआ। What else? And even then he is yours. और तो भी तुम कह रहे हो ये तुम्हारा है। Yes. You are talking nonsense. I'm not sure whether he understand what I was trying to say, but he replied out in plain innocence. मैं श्योर नहीं था कि क्या गंगू समझ पा रहा है जो मैं उसे कहना चाहता हूँ। एंड ही रिप्लाइड आउट ऑफ प्लेन इनोसेंस, और उसने मासूमियत के साथ जवाब दिया, "बाबूजी, शी नियरली डाइड गिविंग हिम बर्थ. शी हैड गॉट ए न्यू लाइफ.
She struggled between life and death for 3 days and 3 nights. I taunted him. This is the first time I hear that a baby can be born after 6 months of marriage. The arrow had hit the target. अब शायद गंगू को बात समझ आई. He smiled and said, उसने कहा, Oh, it's that. I didn't even think of it. That is why गोमती had run away. और शायद तभी गोमती चली गई थी. He continued, I said, Gomti, if you don't like me, you can leave me. I shall go away and never trouble you again. उसने अपनी बात आगे गंगू ने जारी रखी. उसने कहा कि मैंने गोमती देवी से कहा कि अगर तुम मुझे पसंद नहीं करती मुझे छोड़ सकती हो. मैं चला जाऊंगा और तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगा. इफ़ यू एवर नीड माई हेल्प राइट टू मी एंड आई शैल डू एवरीथिंग आई कैन. और जब कभी भी तुम्हें मेरी ज़रूरत हो तो मुझे लिखना और मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूँगा जो मैं कर सकूँगा. आई हैव नो रिसेंटमेंट अगेंस्ट यू. तुम्हारे खिलाफ मेरे दिल में कोई रिसेंटमेंट, कोई नाराज़गी नहीं है. इन माई आईज़ यू आर स्टिल एज गुड एज यू वर बिफोर. आज भी तुम मेरी आँख में उतनी ही अच्छी हो जितनी कि पहले थी. आई लव यू एज बिफोर. नो, नाउ आई लव यू इवन मोर. एंड इफ़ यू हैव नॉट टर्न अवे फ्रॉम मी then come with me. Gangu would never be unfaithful to you. I married you not because you are a goddess, but because I loved you and believed you also loved me. This child is my child, my own child. I took a sown field. Should I then disown the harvest just because someone else had sown it? These lines give a message of the story. The message that narrator or the author wants to convey by this story, we can understand that message from these lines. Gangu says to Gomti Devi that this child is my child, कि ये बच्चा मेरा बच्चा है, my own child. I took a sown field, कि मैंने एक बोया हुआ खेत लिया. Should I then disown the harvest? तो क्या मैं उस फसल को इसलिए छोड़ दूंगा क्योंकि किसी और ने उस फसल को बोया है. Saying this, गंगू burst out into a loud laughter. ऐसा कहते ही गंगू जोर से हंसने लगा. I forgot to change my dress. Narrator says that he forgets to change his dress. I don't know why, but my eyes were filled with tears, and his eyes are filled with tears. I don't know the power that crushed my revulsion and made me open my arms. I took that immaculate child in my lap and kissed his face with affection that perhaps I had not shown even for my own children. और नरेटर ने उस बच्चे को गोद में लिया, उसे प्यार किया. इतना अफेक्शन उसने उस बच्चे के प्रति दिखाया जितना शायद उसने कभी अपने खुद के बच्चों के प्रति भी नहीं दिखाया होगा. गंगू said, बाबूजी, you are such a good human being. I have always sung your praises before Gomti. I keep telling her to come and meet you, but she doesn't come out of shyness. गंगू ने कहा कि बाबूजी आप बहुत अच्छे आदमी हैं. मैं आपकी प्रशंसा हमेशा गोमती देवी के सामने करता हूँ और मैंने उसे कहा भी कि वो आए और आपसे मिले, लेकिन वो बहुत शाई है. Now narrator says, I, a good human being, मैं और एक अच्छा आदमी. The veneer of goodness was gone today. I spoke to him with a heart full of devotion. पूरे समर्पण के साथ मैं उससे बात कर रहा था. No. Why should she come to meet a black-hearted person like me? मेरे जैसे black-hearted person से आकर वो क्यों मिलेगी? Come, take me to meet her. मुझे उससे मिलने के लिए ले चलो. You say, I am a good person. No, I am good only from outside, but very mean from inside. It is you who is truly good. तुम सच में अच्छे हो. And this baby is a flower that radiates the fragrance of your goodness. और ये बच्चा वो फूल है जो तुम्हारी अच्छाई की फ्रेगरेंस को फैला रहा है. I embraced the baby and walked alongside गंगू. मैंने बच्चे को गले से लगाया और गंगू के साथ चलने लगा. So this story contains various issues of Indian society and psychological aspects of Indian mindset. The story starts with
an introduction of an illiterate Brahmin servant, Gangu, who thinks he is the superior among all the servants because he is Brahmin. The owner of the house is the narrator of the story, and he could be Premchand himself. The rigid mentality of Gangu irritates his master again and again, but he is not much affected with this kind of behavior. One day, Gangu confesses his love towards a widow named Gomti Devi, and he also marries Gomti, who has betrayed 3 husbands before her marriage with Gangu. Gomti gave birth to a child, a baby boy, just after 6 months of her marriage with Gangu, and Gangu accepted that child as if that was his own child. The interesting part of this story is change in the psychology of characters. First, Gangu was a rigid Brahmin and was not allowing anyone to disrespect him. But when he falls in love with Gomti, he forgets everything and marries her. On the other hand, the master, who was not interested in caste system, he was against that marriage, and he was happy when Gomti ran away and left Gangu. Even when Gangu has shown his child to him, he was taunting Gangu about this child's birth just in 6 months. At the end, Master has realized that what he was doing was not appropriate because he was an educated man and a writer, but he learned a lot from an illiterate Gangu, and then he apologized Gangu and went to meet Gomti. This story contains Indian society and culture very minutely. We can read and observe that Gangu is an illiterate Brahmin, but though he has proud upon his caste as Brahmin. Gomti is a widow, and remarriage of widows was a general practice, and the afterlife of widow and exploitation is also mentioned in the story. Issues of poverty in Gangu's life and his social life is also important in the story. The child is a symbol of love between Gomti Devi and Gangu, as well as a symbol of awareness on the part of a reader or on the part of narrator. Thank you.